السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور ماؤں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آج ہماری آنکھ بند ہو جائے اور ہم اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں تو کیا ہمارے پاس ان نمازوں کا کوئی جواب ہوگا جو زندگی کی سستی، غفلت، بیماری یا کام کاج کی وجہ سے چھوٹ گئی؟ ہم میں سے اکثر بہنیں اس فکر میں گھلتی رہتی ہیں کہ میرے ذمے تو سالوں کی نماز قضا ہیں، میں اتنی زیادہ نمازوں کا حساب کیسے پورا کروں گی؟ اور اسی گھبراہٹ میں وہ شروعات ہی نہیں کر پاتی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں بھی یہی تڑپ اور خوف ہے تو آج کی یہ ویڈیو بالخصوص آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اگلے چند منٹوں میں ہم آپ کو ایک ایسا عملی اور انتہائی آسان طریقہ بتائیں گے جس سے سالوں کا بوجھ منٹوں میں ختم ہو جائے گا، جس میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ عورتوں کے لیے کون سی نمازیں بالکل یا معاف ہیں اور کن کی قضا فرض ہے، برسوں کی قضا نمازوں کا بالکل درست حساب لگانے کا آسان ریاضیاتی فارمولہ کیا ہے، شریعت نے کثرت قضا کی صورت میں اداکاری کے لیے کون سی خاص رخصتیں اور آسانیاں دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر 3 ایسے زبردست اور عملی ٹائم ٹیبلز جن میں سے آپ اپنی مصروفیت کے مطابق کسی ایک کا انتخاب کر کے بغیر کسی تھکاوٹ کے اپنے ذمے کا فرض ادا کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو بالکل اسکیپ نہ کریں، اپنے پاس ایک ڈائری اور قلم رکھ لیجئے اور آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل سکتے ہیں۔ نماز اسلام کا وہ عظیم ترین رکن ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر حال میں دیا ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا محاسبہ ہوگا۔ لیکن چونکہ زندگی میں بسا اوقات انسان سے غفلت، نیند یا بیماری کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہیں، اور بالخصوص ہماری بہنیں اور مائیں اکثر گزرے ہوئے سالوں کی قضا نمازوں کے حوالے سے اس فکر میں رہتی ہیں کہ اتنی زیادہ نمازوں کی قضا کیسے ممکن ہے۔ اس لیے آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم عورتوں کے لیے قضا نمازوں کا مکمل شرعی طریقہ، آسان حساب لگانے کا فارمولہ اور ایک ایسا عملی ٹائم ٹیبل بتائیں گے جس سے سالوں کی قضا نمازیں بھی آسانی سے ادا ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے پاس ایک ڈائری اور قلم بھی رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ عورتوں کے لیے کون سی نمازیں معاف ہیں اور کن کی قضا کرنا فرض ہے۔ چنانچہ عورتوں کا حیض اور نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد کے ایام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ان دنوں کی نمازوں کو بالکل یا معاف کر دیا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا ان دنوں کی نمازوں کے بعد میں بھی قضا نہیں کرنی ہوتی، لیکن اس کے برعکس عام دنوں میں سستی، غفلت، بیماری، سفر یا نیند کی وجہ سے جو بھی نمازیں چھوٹ گئی ہوں ان کی قضا کرنا فرض ہے۔ نیز اگر حیض یا نفاس کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور وہ نہیں پڑھی گئی، یا پاک ہونے کے بعد اتنا وقت مل گیا کہ غسل کر کے صرف اللہ اکبر کہا جا سکتا تھا اور وقت ختم ہو گیا،
تو उस वक्त की नमाज भी कज़ा पढ़ना वाजिब होगी। अब सबसे अहम मरहले की तरफ आते हैं कि हमें कैसे मालूम हो कि हमारी कुल कितनी नमाज कज़ा हैं। तो अगर आपको अपनी कज़ा नमाजों की बिल्कुल तादाद मालूम नहीं है तो शरीयत का कायदा है कि आप गालिब गुमान ज्यादा से ज्यादा अंदाजे पर अमल करें, जिसका तरीका यह है कि सबसे पहले बुलूगत का तयन किया जाए, क्योंकि इस्लाम में लड़की की बुलूगत की आखिरी उम्र 15 साल तस्लीम की जाती है। अगर उससे पहले अलामात जाहिर न हो, फर्ज करें एक औरत की मौजूदा उम्र 25 साल है और उन्होंने 15 साल की उम्र से बाकायदा नमाज शुरू नहीं की थी, तो बज़ाहिर 10 साल का अरसा बनता है। इसके बाद हैज के अय्याम मनफी किए जाएंगे, क्योंकि हर औरत के माहाना 7 से 10 दिन हैज के होते हैं, जिस हिसाब से एक साल में तकरीबन 2.5 से 3 माह की नमाज माफ होती हैं। लिहाजा 10 साल में से 2.5 या 3 साल मिन्हा कर लें तो जिम्मे सिर्फ 7 साल की कज़ा बाकी बचती हैं। और आखिर में एक दिन की कुल 20 रकातों, फजर में 2 फर्ज, जोहर में 4 फर्ज, असर में 4 फर्ज, मगरिब में 3 फर्ज, इशा में 4 फर्ज और वित्र में 3 वाजिब, जबकि सुनन व नवाफिल की कज़ा नहीं होती के हिसाब से ज़रब दी जाएगी, जिससे एक साल का हिसाब 1885 फर्ज नमाजें और 365 वित्र बनेगा। अगर किसी के जिम्मे के सालों की कज़ा नमाजें यानी उम्र कज़ा हो तो शैतान अक्सर ये वसवसा डालता है कि इतनी ज्यादा नमाजें कैसी पढ़ी जाएंगी और बंदा हिम्मत हार बैठता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में कोई तंगी नहीं रखी और शरीयत मुतहरा ने कसरत से कज़ा करने वालों के लिए अदायगी में कुछ खास आसानियां फराहम की हैं ताकि बोझ महसूस न हो। जैसे कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई भी बिल्कुल छोटी सूरत, मसलन सूरह कौसर या सूरह इखलास पढ़ना मुख्तसर क़िरात के तौर पर काफी है। रुकू और सजदे में 3 बार के बजाय सिर्फ 1 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला कहने की तखफीफ हासिल है। आखिरी नशिस्त तशहुद में अत्तहियात के बाद पूरा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बजाय सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़कर सलाम फेरा जा सकता है। वित्र की तीसरी रकत में दुआए कुनूत लंबी लगे या याद ना हो तो उसके निअमल बदल के तौर पर 3 बार रब्बि ग़फ़िरली पढ़ना जायज़ है। और सुनन मौक़िदा के अलावा दिगर इख्तियारी नवाफिल मसलन इशराक, चाश्त, अवाबिन पढ़ने के बजाय उनकी जगह अपनी कज़ा नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि फ़र्ज का कर्ज उतारना नफल से ज्यादा अहम है। अब हम आपको कज़ा नमाजें पढ़ने के 3 मुख्तलिफ और इंतहाई आसान टाइम टेबल बता रहे हैं, जिनमें से आप अपनी मसरूफियत के मुताबिक किसी एक का इंतखाब कर सकती हैं। पहला तरीका 1/1 फार्मूला सबसे आसान है, जिसमें हर वक्त फर्ज नमाज के साथ उसी वक्त की एक कज़ा नमाज पढ़ी जाती है। मसलन फजर के फर्जों से पहले या बाद में 1 फजर कज़ा, जोहर के बाद 1 जोहर, असर के साथ 1 असर, मगरिब के साथ 1 मगरिब और इशा के साथ 1 इशा, वो वित्र, जिसके नतीजे में आप बगैर किसी थकावट के 1 साल में अपने 1 पूरे साल के कज़ा मुकम्मल कर लेंगे। दूसरा तरीका 2/1 फार्मूला तेज रफ्तारी के लिए है, जिसमें कज़ा ज्यादा होने की सूरत में हर वक्त 2 कज़ा नमाज अदा की जाती हैं, ताकि सिर्फ 1 साल में 2 साल की कज़ा मुकम्मल हो जाए। और तीसरा तरीका एक साथ 20 रकतें मखसूस वक्त है, जिसमें दिन या रात का कोई एक वक्त मुकर्रर करके मसलन जोहर के कामों से फरागत के बाद या रात सोने से पहले एक ही नशिस्ते में पूरे एक दिन की 20 रकतें, 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा और 3 वित्र
इकट्ठी पढ़ ली जाती हैं। क़ज़ा नमाज पढ़ते वक्त सिर्फ 3 मकरूह औक़ात तुलूए आफ्ताब यानी सूरज निकलने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, इस्तिवा ज़वाल यानी ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज बिल्कुल सर पर हो, और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले का ख्याल रखना जरूरी है, जिसमें क़ज़ा नमाज पढ़ना जायज नहीं, जबकि इनके अलावा दिन या रात के किसी भी हिस्से में क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। लिहाजा आज ही एक कॉपी या मोबाइल में हिसाब की डायरी बना लें, ताकि जितना हिसाब होता जाए उस पर निशान लगाने से आपको खुशी और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। क्योंकि मेरी मुहतरम बहनों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और इससे पहले कि हमारी अपनी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, हमें अपने जिम्मे का ये फर्ज कर्ज जल्दी से जल्दी अदा कर लेना चाहिए, और नमाजों की क़ज़ा के साथ साथ अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए, ताकि साबिक़ा गफलत माफ़ हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको पाबंदी से नमाज अदा करने और अपनी तमाम क़ज़ा नमाज़ें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बहनों, माओ और बेटियों, आइए अपने हाथों को अपने मेहरबान रब के सामने फैला लें, अपनी आंखों को झुका लें और दिल के पूरे आजिज़ाना अंदाज में अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए अपने पालने वाले को पुकारते हैं। आप जहां भी हैं सच्चे दिल से आमीन कहिए। क्या खबर किसकी ज़बान से निकली आमीन हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ए हमारे प्यारे अल्लाह, ए माफ़ करने वाले और रहम करने वाले रब, हम तेरे बेशुमार गुनाहगार और गलतियां करने वाले बंदे तेरे दर पर हाजिर हैं। ए अल्लाह, हमारी जिंदगी के जो दिन और साल सुस्ती, गफलत या ना समझी, बीमारी या घर के काम काज की वजह से तेरी इबादत के बगैर गुजर गए, ए पालने वाले, हम अपनी उन तमाम कोताहियों पर शर्मिंदा हैं और तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ए हमारे मालिक, तो बहुत रहम करने वाला और करम करने वाला है। हमारी पिछली तमाम गफलतों को माफ फरमा दे, हमारी क़ज़ा नमाजों की इस कोशिश को कबूल फरमा, और जो नमाजें हमसे छूट गईं उनके गुनाह को अपने बेपनाह रहमत से मिटा दे। ए अल्लाह, हमारे तमाम माओं, बहनों और बेटियों के दिलों में अपनी नमाजों की तड़प और फिक्र पैदा फरमा। सालों की क़ज़ा नमाजों का ये बोझ अदा करना हमारे लिए आसान बना दे। शैतान के वसवसों से, सुस्ती और काहिली से हमें निजात अता फरमा। ए अल्लाह, हमें ऐसा मजबूत इरादा और हिम्मत दे कि हम में से हर एक बहन अपनी क़ज़ा नमाजों का हिसाब पूरा कर सके, और जब तक हमारी आखिरी सांस न आए हमें 5 वक्त की नमाजों का पाबंद बना दे, हमें सजदों का सुकून और खुशी लौटा दे। ए अल्लाह, हमारे माओं की उम्र, सेहत और ईमान में बरकत अता फरमा। उन्होंने जो कुर्बानियां हमारी परवरिश के लिए दी, उन्हें उनका बेहतरीन बदला अता फरमा। ए प्यारे रब, हमारे बहनों के घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत नाजिल फरमा, उनकी रोजी और रिज़्क़ में कुशादगी अता कर। ए हमारे परवरदिगार, हमारे बेटियों की गैब से हिफाजत फरमा, उन्हें हया, पाक दामनी और दीन इस्लाम के सच्चे पैरोकार बना, उन्हें नेक और अच्छे मुक़द्दर अता फरमा, और उनके आने वाली नस्लों को भी नमाज का पाबंद बना। ए अल्लाह, जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें हमें अपने सामने झुकने वाला रख, और जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो हमारी ज़बान पर कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो और हमारा अंजाम खैर पर हो। ए अल्लाह, हमारी इस छोटी सी काविश को हमारी
ہمارے والدین کی اور اس ویڈیو کو دیکھنے اور شیئر کرنے والے ہر انسان کی بخشش کا ذریعہ اور سدا جاری رہنے والی نیکی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے اپنے دیگر بہنوں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔